अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी एमडीकेट 124 की केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यूज नंबर 69। व्हिच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट? BF3 has a zero dipole moment, so the correct option is A. MCQs number 70. The unhybridized p orbital in sp2 hybridization is in the same plane, out of the plane, parallel to sp2 orbital, perpendicular to sp2 orbital. So the unhybridized p orbital in sp2 hybridization is perpendicular to sp2 orbital. So the correct option is D. MCQs number 71. 760 torr is equal to dash Pascal. So 760 torr is equal to 101325 Pascal, or it is also equal to 1 atm, or 1 atm is equal to 101325 Pascal. It is also equal to 760 mm of Hg, and it is also equal to 76 centimeter of Hg. Okay. MCQs number 72. How many gram of CO2 can be produced by thermally decomposing 10 mole of zinc carbonate? इस एमसीक्यूज में कहते हैं कि जिंक कार्बोनेट के जब 10 मोल डिसोसिएट हो जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी ग्राम प्रोड्यूस करेंगे। सो लेट्स सी। इसमें कहा गया है, इक्वेशन है, जिंक कार्बोनेट डिसोसिएट हुआ है जिंक ऑक्साइड में और CO2 में। According to equation, 1 mole of zinc carbonate give 1 mole of zinc oxide, 1 mole of carbon dioxide. So 10 mole of zinc carbonate will give 10 mole of carbon dioxide. So now we convert number of mole of CO2 to mass in gram. So number of mole हम इस तरीके से मालूम करेंगे कि मास इन ग्राम को डिवाइड करेंगे मोलर मास पे। So mass is equal to number of mole multiplied by molar mass. So number of mole है, हमने इक्वेशन के जरिए मालूम की 10, और मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, मोलर मास है 44। सो 10 को 44 से मल्टीप्लाई करें, सो करेक्ट ऑप्शन इज 440 ग्राम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Molar heat of vaporization of water is 40.7 kilojoule per mole. So the correct option is D. MCQ number 74. Distillation under very reduced pressure is dash distillation. So जब डिस्टिलेशन वेरी रिड्यूस प्रेशर के जरिए किया जाए तो इस डिस्टिलेशन को वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQs number 75. The example of metallic solid is बोरान metallic solid नहीं है, कार्बन भी metallic solid नहीं है, कॉपर metallic solid है। So correct option is D. सिलिकॉन मेटालाइड है, so it is not a correct option. MCQ number 76. When a crystalline substance conduct current in one direction, but not through other direction of the crystal, this property, जब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एक डायरेक्शन में करंट को पास करता है और दूसरे डायरेक्शन में करंट को पास नहीं करता है तो हम इस प्रॉपर्टी को एनिसोट्रोपी कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ number 77. Forward reaction is the one that is very slow at the beginning of the reaction, not it is very fast at the beginning of reaction, so it is not the correct option. B. React to form reactant, not it react to form the product, so it is also wrong. Option number C. Speed up gradually and at equilibrium its rate become constant, not it slow down gradually, so it is also wrong. Option D. Take place from left to right is given in chemical equation, correct.
Forward reaction is taken place from left to right, so the correct option is D. MCQ number 78. How many mole of NaCl are produced from 16.5 gram of HCl according to the neutralization reaction? इस MCQ में कहता है कि जब सोडियम क्लोराइड HCl के 16.5 ग्राम से रिएक्ट करे कि NaCl की कितनी मोल प्रोड्यूस होगी HCl की 16.5 ग्राम से। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जब HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करे तो वो साल्ट NaCl को प्रोड्यूस करते हैं और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम सोडियम क्लोराइड की मोल को मालूम करते हैं, सो फर्स्ट वी फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl। जब हम HCl के मोल को मालूम करते हैं तो HCl का मास इसके मोलर मास पर डिवाइड करते हैं, सो द नंबर ऑफ मोल will be obtained. So number of mole is 0.452. According to equation, 1 mole of HCl give 1 mole of NaCl. So 0.452 mole of HCl will give 0.452 mole of NaCl. So the correct option is B. MCQs number 79. In the production of SO3 from SO2 and oxygen, the yield of SO3 increased by SO2 Number 1. Adding a catalyst. Not. It is not correct because catalyst both forward और reverse reaction को speed up करता है. So it has no effect on the reaction. So it is wrong. Adding more SO2. जब हम इस reaction में SO2 को add करते हैं, so production of SO3 will be increased. So the correct option is B. MCQs number 80. Consider N2 plus 3H2 रिएक्शन करता है और अमोनियम को प्रोड्यूस करता है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H है -92.46 किलोजॉल पर मोल। द ऑप्टिमम टेम्परेचर टू प्रोड्यूस अमोनिया इज 450 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQs number 81. The Kc for the system PCl5 PCl3 plus Cl2 is. So इसके लिए Kc हम ऐसे मालूम करेंगे, Kc is equal to product divided by reactant. ये हो गया PCl5 यहाँ आएगा, ये PCl3 हो गया और ये Cl2 हो गया। फिर इसमें मोल फॉर डीएम क्यूब पुट करेंगे और इसमें भी मोल फॉर डीएम क्यूब पुट करेंगे और इसमें भी मोल फॉर डीएम क्यूब, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मोल फॉर डीएम क्यूब। Mole for DMQ, option B is correct. MCQs number 82. For a first order reaction A is converted into B, the rate constant is 0.458 per second. Calculate rate of the reaction if the concentration of reactant is 0.35 mole. So rate of reaction बराबर है
constant multiplied by the concentration of the reactant. So इसमें constant का वैल्यू दिया गया है 0.458 पर सेकंड और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है 0.35 मोल पर डीएम क्यूब। जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 0.016। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQs number 83. A reaction is first order with respect to A and second order with respect to B. The rate equation is, इसमें वो कौन सा है जिसमें rate of reaction with respect to A is first order है और respect to B second order है। तो इस ऑप्शन नंबर ए में with respect to A first order है लेकिन B नहीं है। with respect ऑप्शन नंबर बी, इसमें rate of reaction with respect to A first order है और respect to B first order है। So it is not the correct option. Option number C, इसमें rate of reaction with respect to A second order है और respect to B first order है। So it is also wrong. Option number D, इसमें rate of reaction with respect to A first order है और respect to B second order है। So the correct option is D. MCQs number 84. What mass of aluminium trioxide is produced from 18.5 gram of aluminium metal when it reacts completely with oxygen gas according to the following equation? जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वह एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और क्वेश्चन में कहा गया है कि एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड के कितने ग्राम प्रोड्यूस होंगे जब वो 18.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे। सो लेट्स सी। जब हम एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड के ग्राम मालूम करेंगे तो हम इससे पहले उसके नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए मालूम करेंगे एल्यूमिनियम के मास से। पहली एल्यूमिनियम के मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। Mass of aluminium is given 18.5 gram divided by its molar mass is 27. So number of mole is 0.685. Equation से हम ये मालूम करते हैं कि 4 mole give 2 mole of 4 mole of aluminium 2 mole of aluminium trioxide को प्रोड्यूस करते हैं। So 0.685 मोल कितने मोल ऑफ Al2O3 को प्रोड्यूस करते हैं। So now we find number of mole of Al2O3 from equation according to equation. 4 mole of aluminium give 2 mole of aluminium trioxide. So 0.685 will give 2 divided by 4 multiplied it by 0.685 तो से आता है 0.3425। ये नंबर ऑफ मोल है। अब हम इस नंबर ऑफ मोल से एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड की मास मालूम करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड का मास मालूम होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम है 0.3425 और एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड का मोलर मास है 102। सो मास ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड इज 34.925। So the correct option is C. MCQs number 85. Calculate the work done when 1 mole of an ideal gas expands from 15 dm cube to 20 dm cube against a constant external pressure of 2 atmosphere. इसमें 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है और वो अगेंस्ट द प्रेशर वर्क करता है और प्रेशर है 2 atm। सो W बराबर है P मल्टीप्लाइड बाई V। V2 है फाइनल वॉल्यूम 20 और इनिशियल वॉल्यूम है 15।
सो इससे 5 आएगा और 5 जब 2 से मल्टीप्लाइड होता है तो 10 आएगा, लेकिन इसमें वर्क डन सिस्टम पर किया गया है against external pressure, so the work done will be negative. So the correct option is -10. Option A is correct. MCQs number 86. When 1 mole of ice melt at 0 degree centigrade and constant pressure of 1 atmosphere, 60-25 joule of heat is absorbed by the system. The molar volume of ice and water are 0.02 and 0.1 atm³ respectively. Calculate delta E. इस MCQs में कहता है जब 1 मोल ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाए एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर और वो 60-25 जूल ऑफ हीट को ऑब्जर्व करता है। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइस का जो वॉल्यूम है वो है 0.02 और वाटर का जो वॉल्यूम है वो है 0.18 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट डेल्टा ई। इसके इंटरनल एनर्जी को मालूम करना चाहिए और 1 dm³ मल्टीप्लाइड बाय atm बराबर है 101.33 जूल। सो लेट्स सी। इसमें हीट दिया गया है 60-25, प्रेशर है 1 atm और जब हम वर्क को मालूम करेंगे तो वह बराबर है P मल्टीप्लाइड बाई V। प्रेशर है 1 atm और वॉल्यूम है फाइनल यानी वाटर का। जो आइस मेल्ट हुआ है तो इसका वॉल्यूम कम हो जाता है तो है 0.18 और ये 0.02 जो वॉल्यूम है ये है आइस का, इससे आता है 0.002 और क्वेश्चन में दिया गया है कि एटीएम dm³ बराबर है 101.25 जूल। So put 101.25 in place of dm³ atm. So इससे आएगा -0.2025 as we know that हीट बराबर है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। सो हम इंटरनल एनर्जी को इस तरह मालूम करेंगे कि हीट से वर्क डन को माइनस करेंगे। 60-25 से जब हम वर्क को माइनस करेंगे तो इसमें वो वर्क है -0.2025, वो माइनस माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाइड होगा तो इससे प्लस आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 60-25.2। Option D is the correct option. MCQs number 87. One slice of bread with a tablespoon of peanut butter on it contains 20 gram of carbohydrate, 10 gram protein and 9 gram fat. Calculate total energy consumed in the intake. एक स्लाइस है जिसमें मौजूद है 20 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 9 ग्राम ऑफ फैट। इसके टोटल एनर्जी क्या है? तो 20 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट देता है 4 किलो कैलोरीज एनर्जी, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन देता है 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एंड 1 ग्राम ऑफ फैट गिव 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। सो वी कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। सो टोटल एनर्जी ऑफ कंज्यूम इज 20 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे 80 आता है। 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन विल गिव 40 किलो कैलोरीज एनर्जी एंड 9 ग्राम ऑफ फैट विल गिव 81 किलो कैलोरीज एनर्जी। सो अब हम इसको ऐड करेंगे सो टोटल एनर्जी इज 201 किलो कैलोरीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQs number 88. Delta H can be measured indirectly by applying Hess law. Hess law के जरिए हम डेल्टा H को इनडायरेक्टली मेजर करता है और कैलोरीमेट्री के जरिए डायरेक्टली हम इसको मेजर करता है। MCQs number 89. The heat of sublimation of potassium is
98 kilojoule per mole. The heat of dissociation of bromine gas is 192.5 kilojoule per mole. The ionization energy of K is 14 kilojoule per mole. The electron affinity of bromine is minus 34.7 kilojoule per mole, and the heat of formation of KBr is minus 45.8 kilojoule per mole. Calculate the latest energy of KBr. So let's see the equation. ये पोटाशियम रिएक्ट करता है ब्रोमीन से तो वो प्रोड्यूस करता है KBr को। तो हमें मालूम है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर है हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्लस एनर्जी हीट ऑफ डिसोसिएशन प्लस हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लेटेस्ट एनर्जी। लेकिन इसमें लेटेस्ट एनर्जी को मालूम करना चाहिए, सो हम लेटेस्ट एनर्जी को यहाँ छोड़ेंगे और हीट ऑफ फॉर्मेशन से बाकी को माइनस करेंगे। सो द इक्वेशन become एट। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू है वह माइनस 45.8 है और हीट ऑफ सब्लिमेशन का जो वैल्यू है वो है माइनस 98 और आयनाइजेशन का जो एनर्जी है वो है माइनस 44 और डिसोसिएशन का जो एनर्जी है वो है 92.5। लेकिन ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन में लगता है तो एक वन ब्रोमीन का जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो हो जिसको हम मालूम करेंगे तो 192 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे वन ब्रोमीन की डिसोसिएशन एनर्जी आएंगे माइनस हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो है माइनस 334। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आता है माइनस 79.3 किलोजूल पर मोल। So the correct option is A. MCQs number 90. Which of the following is a strong electrolyte in solution? Potassium iodide strong electrolyte है। MCQs number 91. When 4 gram of magnesium was heated in excess of oxygen, calculate the theoretical yield of magnesium oxide. जब 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के एक्सिस में हीट हो जाए तो इसका तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना चाहिए। थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो हम इक्वेशन के जरिए मालूम करता है। सो इसमें 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का दिया गया है। जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करेंगे तो सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे, फिर इससे थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करेंगे। सो मास ऑफ मैग्नीशियम है 4, सो इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल इज 1/12। According to equation, 1 mole of magnesium give 2 mole of magnesium oxide. So 1/12 mole of magnesium oxide will give 1/6 mole of magnesium oxide. Now we convert number of mole of magnesium oxide 1/6 to mass to find the theoretical yield of magnesium oxide. जब हम मास को मालूम करेंगे तो नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाइड करेंगे मोलर मास के साथ, तो नंबर ऑफ मोल है 1/6 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज 40, सो mass is equal to 6.66 grams. So the correct option is D. MCQ is number 92. The electrode potential